Audible to all of you. So here the very peak point is the going on because the nowadays 2 week is the remaining. Okay, so little bit the 2 week is the remaining. So in the 2 week the how to physics को आपको you have to the कैसे manage करके तौर तरीके से चलना है because now students they have the completed the chapter, they have the completed the all syllabus and they have the given the lot of the test, but the still this problem is that कि they still the abhi disappointed and the some nervousness and the anxiety they have the got inside. So isko avoid karne ka best approach I am telling to you that ki you can the understand better sir is the human nature ki that the you it's the human nature sir. So all of the student not only you, okay, is the second the persistent is ki student all of student think that ki only we are the getting the stuck and we are confused about this. No, is the not. Okay, all students start to anxiety in the coming the session and the coming the examination as the exams come so soon so close to you and the anxiety is the going to start sir. So you have to the eliminate and the eliminate करने का best approach है the dealing you कि first of all you have to be the not excited, not the enthused, not the also do done. Okay, you have to the do the as usual you are doing. Okay, don't to be the excited. Suppose that you say as you reaches at the center and you are very excited. Okay, then the in jaldibazi mein is the chances is the probability to deal the all of the question is the wrong. So first of all observation यही है कि ऑपरेट मॉडरेट लेवल में आपको मेंटेन करना सो दैट कि आपका माइंड फुल रहे, उस कूल माइंड से आप कोई भी क्वेश्चन को डील कर. सो बेस्ट अप्रोच आई एम गोइंग टू टेल यू द टॉपर हाउ टू गेट द गुड रैंक. ओके, सो गुड रैंक और गुड स्कोर करने का बेस्ट अप्रोच यही है कि जो आप पढ़े हैं उस पर फुल कॉन्फिडेंस होना बहुत जरूरी है. नाउ ये डे की इंपॉर्टेंट है कि कॉन्फिडेंस आप कैसे मेंटेन करें. ओके, सो कॉन्फिडेंस मेंटेन करने का बेस्ट अप्रोच है नाउ ये डे कि आप किसी भी क्वेश्चन पे उलझे मत. ओके, कि suppose that कि someone student if you reaches the center then a lot of students are asking the question कि सर ये नहीं आ रहा है, ये कैसे किया, that the वो आपको क्या उलझाने का कोशिश कर, बट इसमें आपको पढ़ने की कोई ज़रूरत है नहीं. क्लियर है क्या इतना? सो सेकेंड पॉइंट ही कि आप ऐसे टॉपिक को आप रिवाइज कर. अच्छा, रिवाइज करने का बेस्ट अप्रोच आई एम गोइंग टू टेल यू दैट द नो स्टूडेंट नो अबाउट दिस. Hardly student know and the lot of the student while 90% student what the doing the mistake in the revision करने का बहुत ही घटिया. I have observed the some lot of the student they saying कि सर ये ऐसे रिवीजन किया. Suppose that you have the I just give the example. Okay, बिल्कुल 1 minute. Suppose that I give the example, you have to start the electrostatics. I am talking about the electrostatics. और इलेक्ट्रोस्टैटिक में सपोज दैट कि आपको कुछ नहीं मालूम है बट स्टार्ट आप नोट्स खोल लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का और आप क्या कर रहे हो, पेज को टर्न कर रहे हो. ओके, पेज को टर्न कर रहे हो, हाँ ऐसे ऐसे देख रहे हो. दैट इज द गुड, नॉट द अप्रोप्रिएट, नॉट द रीजनेबल, दैट द नॉट द फेयर द तरीका. दैट द गुड तरीका ये है कि अब suppose that you are opening the pages and also turning the pages. So problem is that कि your the mind is not working sir because all of these things is the given in the your pages, is the given in the written in the or your the notes. Okay, so here the mind is not working but you will get the sympathy that we have the completed the revision. That is not good तरीका. अब आते हैं we are talking about the कि good तरीका क्या होना चाहिए. फर्स्ट ऑल आप सपोज दैट आपका प्लान है आज कि 1 घंटे या आधा घंटा में मुझे कुछ ना कुछ रिवीजन कर देना है. जैसे एक टॉपिक में ले लिया बेटा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, कुछ टॉपिक का बात कर रहा हूँ बेटा, कोई एक चैप्टर आप ले लिए बट उसको पहले से आप उसको डिटरमाइन कर लिया कि मुझे किस चैप्टर का डिफिनीशन किस चैप्टर का मुझे रिवीजन करना है, प्री प्लान पहले ही. सेकेंड थिंग कि आप पेज को टर्न न करें, डोंट नीड टू बी द टर्न योर द पेज एंड यू हैव टू स्टार्ट टू राइट डाउन इन योर मेमोरी जो आपको याद है. ओके, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में राइट डाउन की चार्ज का प्रॉपर्टी क्या है, मास का डिफरेंस एंड द चार्ज का यूनिट, ऑल ऑफ दिस यू टू राइट. ओके, और जहाँ पे आप स्टक कर रहे हैं मेथड ऑफ चार्ज, जस्ट द प्रोसीजर यू टू कंटिन्यू थी. ओके, अब सपोज दैट कुछ समय के बाद आप स्टकिंग करने लगे, सपोज दैट की प्रॉब्लम आने लगा इस बात का कि आपको भूल रहे हो, सपोज दैट आप भूल गए कि खुलाम सलाम में कैसे हो रहा है क्या. सो उसको नोट डाउन कर सकते हो बट आई गिव द गारंटी टू यू
सर वो आपको माइंड में कभी ना कभी आ ही जाएगा, अभी 10 मिनट 15 मिनट के अंदर आ सकता है, एक कंफर्म है। बिकॉज आप मॉडर्न लेवल पे अगर प्रिपरेशन तहे दिल से अगर प्रिपरेशन किए हो तो दैट इज माई गारंटी कि वो आ जाएगा। बट आपको समय जो दिया है उस समय में आपको रिवीजन करना है तो आप प्रोसीड कर सकते हो। बट कुछ समय के बाद बिकॉज कुछ ऐसे चीज़ों से जो जनरली आपके सब कंसेप्ट माइंड में जा चुका है, और जो सब कंसेप्ट माइंड में जा चुका है बेटा, सो आई गारंटी के साथ मैं बोल सकता हूँ कि वो भूलने वाला नहीं है। ओके, सो आई गिव द जस्ट सिमिलर एग्जाम्पल। सर मैं आपके मैग्नेट बनने का तरीका तौर तरीका दो तरीके हैं, टेम्पोररी मैग्नेट, एक परमानेंट। परमानेंट अगर मैग्नेट आपको बनना है, परमानेंट सपोज दैट किसी मेटल को आपको मैग्नेट बनाना है तो उसको काफी समय तक, काफी प्रेशर, काफी हाई टेम्परेचर पे उसको रखना पड़ता है। बोलो ऐसा नहीं हो बेटा, क्लियर है इतना? सो दैट द सिमिलर वे अगर आपको अच्छा एक लेवल कमांड बनाना है तो सिमिलरली आपको काफी समय देना पड़ेगा उसको। ये नहीं कि वन शॉट वीडियो देखे काम चलते हैं, दैट इज द नाम वन शॉट वीडियो। आई गारंटी के साथ मैं बोल सकता हूँ वन शॉट के लिए तो शॉर्ट टर्म सोल्यूशन लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम। तो शॉर्ट टर्म को अप्लाई ना करें यहाँ पर। अब यहाँ पर अप्लाई क्या करना है वो समझना है आपको, क्योंकि पूरा सेशन आप पढ़ चुके हो। अब इस सेशन में थोड़ा स्मार्ट वर्क करना है, स्मार्ट की स्ट्रेटजी प्लानिंग से। ओके, पढ़े तो सब है लेकिन अच्छा रैंक लाना सबके बस के बाहर है। क्लियर है क्या इतना? तो वही तौर तरीका आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूँ। क्लियर है? तो पढ़ने का बेस्ट अप्रोच, रिवीजन करने का बेस्ट अप्रोच आई मैं टॉकिंग अबाउट। ओके, सो आप क्या करो, जो भी चैप्टर का आपको रिवीजन करना है आप अपने उसको राइट डाउन करिए, और कुछ ऐसा पॉइंट लग रहा है कि जो रिकॉल नहीं हो पा रहा है नोट डाउन करिए, फिर उसको आप देखिए। दैट द कंफर्म के कुछ गारंटी के साथ मैं बोल सकता हूँ कि वो टॉपिक आपको धीरे धीरे रिकॉल करना स्टार्ट हो जाएगा। बट अगर ऐसा नहीं कर रहे हो, पेज ऐसा टर्न करके बढ़ो, इज द माइंड को आप पैरालाइज कर रहे हो बेटा। क्या कर रहा है? माइंड को पैरालाइज, बिकॉज आपका माइंड वर्क नहीं कर रहा। आप केवल ये देख रहे हो कि मैं ऐसा लिखा हूँ, बट उस पर क्योंकि वो लिखा है आप कर नहीं रहे हो। सो बेस्ट अप्रोच यही है कि उस ड्यूरेशन में थॉट प्रोसेस, अपने माइंड के थॉट प्रोसेस को एक्सेस कर सकते हो, बढ़ा सकते हो, और आपका टॉपिक भी रिकॉल हो रहा है। तो ऐसे समय टाइम टेकिंग है, बिकॉज तो कुछ ऐसे टॉपिक है जो नहीं कर रहा, बस कुछ समय की बात हो सकती, तो आराम से 2-3 घंटे में आप इलेक्ट्रोस्टैटिक कवर कर सकते हो। ओके, फिर आप शाम को बैठ गए, फिर अपना एक चैप्टर ऐसे करो, बहुत आराम से कर सकते हो, और ग्रेजुअली आप बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट कर सकते हो। जो सोचने की कैपेबिलिटी है उसको ग्रोथ करने का एक बेस्ट अप्रोच आपको बता दिया। बिकॉज एग्जाम हॉल में आप बैठे हैं बेटा, सपोज दैट आप कोई टॉपिक भूल गए, बिकॉज ऑब्वियसली अगर आप रटे हैं, सब मेमोराइज किए तो भूलना सिंपल है, जिसका कंसेप्ट क्लियर है वो भूलेगा। ओके, अब उसको कैसे रिकॉल किया जाए, तो रिकॉल करने का बहुत तरीका, कोई 10 मिनट में कर रहा है, कोई 20 मिनट में, कोई 1 मिनट में कर ले। सो तब तरीका है। तो अगर समय एक्सेस ले रहे हो तो वो समय क्या हुआ, वेस्ट हो जाएगा वहाँ पे, तो उसको मिनिमाइज करने का बेस्ट अप्रोच आपको दिया। क्लियर है क्या इतना? ओके। और सेकेंड थिंग कि आप जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है उस पर कमांड बनाइए, कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पूछने का इंक्लिनेशन क्या है, पूछने का तौर तरीका क्या है, कि किस वे में, तो उससे क्या होगा, आपका जो पढ़ने का इंक्लिनेशन है, थॉट प्रोसेस है, वो टुवर्ड्स टू जो एग्जाम में आ रहा है उसके अकॉर्डिंग अपने आप को ढालो। ओके, सेकेंड थिंग कि जो आप टेस्ट दिए हो उसको एनालिसिस करिए, उसको लिंक करिए कि एग्जाम में ऐसा बोर्ड में बन सकता है, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। यही इस सेशन में करना है। ओके, तो बहुत अच्छा स्कोरिंग कर सकते हो बेटा, ऐसे कर रहे हैं स्टूडेंट, और रियली में फीडबैक अच्छा मिल रहा है। आप भी इसको ट्राई करिए। ओके, क्योंकि ये समय नहीं है कि आपको ट्रेडिशनली एनसीईआरटी सब कुछ करना है, ऐसा कुछ नहीं है। आप नोट्स जो बनाए हो उसी पे अपने आप को कॉन्फिडेंस बना के जर्नी को आगे कायम बनाना है। आई होप कि आपका पेपर बेस्ट होगा। जय हिंद, जय भारत।